in West Bengal of enabling illegal activities, including the creation of fake documents of Bangladeshi infiltrators. Under Rohingyas, he highlighted the disappearance of explosives, bomb explosions, and the spread of fraudulent Aadhaar cards and voter IDs across the country. Ghosh criticized the government for inaction and urged Chief Minister Mamata Banerjee to arrest those involved, suggesting that the entire government might be complicit in these illegal activities. मुर्शिदाबाद, कैनिंग जगह जगह आकर के यहाँ शेल्टर ले रहे हैं और यहाँ साजिश हो रही है, यहाँ रिक्रूटमेंट हो रहा है टेररिस्ट का। पुलिस को पता नहीं, या तो पुलिस जानते हुए इसको इग्नोर कर रही है, दूसरे प्रदेश के पुलिस आके छापामारी कर रहा है, उठा रहा है। इसके पहले हम देखा है न्यू टाउन में पंजाब का गैंगस्टर मिला था, मिजोरम से आया हुआ टेररिस्ट छुपा था। तो बार बार इस प्रकार घटना हो रही है, इससे संदेह हो रहा है कि सरकार चाह रही इस प्रकार घटना हो, ये उनका शायद वोट बैंक बन चुकी है। और यहाँ से बाहर के लोग आकर के कोई डेथ सर्टिफिकेट, कोई बर्थ सर्टिफिकेट माल पौरसभा से मिला है अफगानी लोगों का, बांग्लादेशी रोहिंग्या अनुप्रवेशकारी को यहाँ से रेशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब मिल रहा है और पूरा देश में जाके वो लोग इस प्रकार एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं। বানানোর পরিকল্পনা করছিল এবং বীরভূম এবং রাজমহলের খাদানে যোগাযোগ করছিল এবং গিয়েছিল জিলাটিন স্টিকের জন্য। বহুবার দেখা গেছে কলিয়ারিতে জিলাটিন স্টিক গায়েব হয়ে গেছে, হাজার হাজার, কোথায় গেল কেউ জানে না। আবার অন্য জায়গায় জিলাটিন স্টিক পাওয়া গেছে বেআইনিভাবে। এটা খুব চিন্তাজনক পরিস্থিতি। এই বিস্ফোরক যদি গায়েব হয়ে যায় বা ওই ধরনের লোকেদের হাতে পড়ে যায় তো সাধারণ সমাজে কি হবে? জেলায় জেলায় বোমের কারখানা পাওয়া যাচ্ছে, বোমের বিস্ফোরণ হচ্ছে, লোক মারা যাচ্ছে, ভয়ের পরিবেশের মধ্যে এখানে লোককে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। मुर्शिदाबाद, कैनिंग जगह जगह आकर के यहाँ शेल्टर ले रहे हैं और यहाँ साजिश हो रही है, यहाँ रिक्रूटमेंट हो रहा है टेररिस्ट का। पुलिस को पता नहीं, या तो पुलिस जानते हुए इसको इग्नोर कर रही है, दूसरे प्रदेश के पुलिस आके छापामारी कर रहा है, उठा रहा है। इसके पहले हम देखा है न्यू टाउन में पंजाब का गैंगस्टर मिला था, मिजोरम से आया हुआ टेररिस्ट छुपा था। तो बार बार इस प्रकार घटना हो रही है, इससे संदेह हो रहा है कि सरकार चाह रही इस प्रकार घटना हो, ये उनका शायद वोट बैंक बन चुकी है। और यहाँ से बाहर के लोग आकर के कोई डेथ सर्टिफिकेट, कोई बर्थ सर्टिफिकेट माल पौरसभा से मिला है अफगानी लोगों का, बांग्लादेशी रोहिंग्या अनुप्रवेशकारी को यहाँ से रेशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब मिल रहा है और पूरा देश में जाके वो लोग इस प्रकार एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं। বানানোর পরিকল্পনা করছিল এবং বীরভূম এবং রাজমহলের খাদানে যোগাযোগ করছিল এবং গিয়েছিল জিলাটিন স্টিকের জন্য। বহুবার দেখা গেছে কলিয়ারিতে জিলাটিন স্টিক গায়েব হয়ে গেছে, হাজার হাজার, কোথায় গেল কেউ জানে না। আবার অন্য জায়গায় জিলাটিন স্টিক পাওয়া গেছে বেআইনিভাবে। এটা খুব চিন্তাজনক পরিস্থিতি। এই বিস্ফোরক যদি গায়েব হয়ে যায় বা ওই ধরনের লোকেদের হাতে পড়ে যায় তো সাধারণ সমাজে কি হবে? জেলায় জেলায় বোমের কারখানা পাওয়া যাচ্ছে, বোমের বিস্ফোরণ হচ্ছে, লোক মারা যাচ্ছে, ভয়ের পরিবেশের মধ্যে এখানে লোককে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। Manali witnessed a vibrant celebrations on Christmas Eve as thousands of tourists danced to DJ tunes along Mall Road. The festive spirit was high with hotels in the area decorated with the Christmas trees and lights, offering dance programs and events. Host occupancy in Manali was reported to be at 90% with expectations to rise further. The snowfall in recent days has attracted even more visitors, boosting tourism. Local businesses, including shops and dhawas, remain open to accommodate the influx of tourists with events like DJ dance parties and the selection of Miss Manali. The festive atmosphere in Manali is set to continue through the new year. इस वक्त HPDDC के हिसाब से मनाली में हमारे होटल्स जो है अभी लगभग 80 to 90% हमारी ऑक्यूपेंसी चल रही है, जो कि और बढ़ने की पूरी उम्मीद है। और टूरिस्ट जो है काफ़ी उत्साह के साथ मनाली को विजिट कर रहे हैं। और अभी आज क्रिसमस ईव पे लोग हमारे डिफरेंट होटल्स में कहीं बोन फायर, कहीं डाइन एंड डांस और उसका प्रोग्राम चल रहा है, क्रिसमस ट्री वगैरह लग गए हैं, होटल्स हमारे सजा दिए गए हैं। और हमें उम्मीद है कि अभी हम आने वाली 5 जनवरी तक जो है हमारे होटल्स पैक रहेंगे। और इस बार मनाली को हमने क्रिसमस ईव के लिए
बहुत अच्छे तरीके से सजाया भी है। यहाँ पे डीजे का इंतजाम भी है। यहाँ पे जितने पर्यटक यहाँ घूमने आए हैं न्यू ईयर ईद का मजा लेने आए हैं, उन्हें अच्छा म्यूजिक ताकि वो अच्छी तरह से न्यू ईयर ईद इंजॉय करें। मेरा नाम अक्षय है। क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए मनाली आए थे। आज क्रिसमस ईव है, बहुत सारा रश है इधर पे, सो बहुत खुश लग रहा है, बहुत भीड़ है इधर। सो कल क्रिसमस मना के कल जा रहे हैं हम। आज बहुत सैंटा के साथ भी एक सेल्फी खिंचवाया है हमने, सो बहुत खुश लग रहा है आके। आज ही स्नोफॉल भी हुआ है क्रिसमस ईव के दिन और कल भी हुआ था, सो वो भी बहुत खुश लग रहा है। इस वक्त एचपीडीसी के हिसाब से मनाली में हमारे होटल्स जो है अभी लगभग 80 to 90% हमारी ऑक्यूपेंसी चल रही है, जो कि और बढ़ने की पूरी उम्मीद है। और टूरिस्ट जो है काफी उत्साह के साथ मनाली को विजिट कर रहे हैं। और अभी आज क्रिसमस ईव पे लोग हमारे डिफरेंट होटल्स में कहीं बोन फायर, कहीं डाइन एंड डांस और उसका प्रोग्राम चल रहा है। क्रिसमस ट्री वगैरह लग गए हैं, होटल्स हमारे सजा दिए गए हैं और हमें उम्मीद है कि अभी हम आने वाली 5 जनवरी तक जो है हमारे होटल्स पैक रहेंगे। इतिहास क्रिसमस ईव है और इस बार मनाली को हमने क्रिसमस ईव के लिए बहुत अच्छे तरीके से सजाया भी है। यहाँ पे डीजे का इंतजाम भी है। यहाँ पे जितने पर्यटक यहाँ घूमने आए हैं न्यू ईयर ईद का मजा लेने आए हैं, उन्हें अच्छा म्यूजिक ताकि वो अच्छी तरह से न्यू ईयर ईद इंजॉय करें। मेरा नाम अक्षय है। क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए मनाली आए थे। आज क्रिसमस ईव है, बहुत सारा रश है इधर पे, सो बहुत खुश लग रहा है, बहुत भीड़ है इधर। सो कल क्रिसमस मना के कल जा रहे हैं हम। आज बहुत सैंटा के साथ भी एक सेल्फी खिंचवाया है हमने, सो बहुत खुश लग रहा है आके। आज ही स्नोफॉल भी हुआ है क्रिसमस ईव के दिन और कल भी हुआ था, तो वो भी बहुत खुश लग रहा है। इस वक्त CPIM leader Hanan Mullah criticized the BJP for insulting Dr. B.R. Ambedkar and promoting Manusmriti, accusing the party of not respecting Ambedkar's contributions to the constitution. Mullah also raised concerns over alleged illegal activities, including the creation of fake voter IDs linked to Bangladesh infiltrators and the BJP's actions during the elections. He condemned the ruling party for manipulating democratic processes, including the One Nation, One Election plan, which he called a fascist move. Mullah also called out the BJP's electoral promises, claiming that schemes like the Mahila Samman Yojana and others were mere election ploys without proper implementation. कह रही है कि अपमान करना कांग्रेस का स्वभाव है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सर, दिस इज रिडिकुलस, ये हास्यास्पद है, क्योंकि आम्बेडकर से शुरू से आज तक पूरा जो अपमान किया वो आरएसएस और बीजेपी, क्योंकि बीजेपी दिल से आम्बेडकर के नहीं, वो मनुस्मृति को अपना संहिता मानता है। संविधान उसका बस करेगा तो आम्बेडकर का संविधान हटा के मनुस्मृति लाने का उसका वो ऐलान किया, बार बार ऐलान किया है। तो इसलिए आम्बेडकर का इज्जत करने का उसका बहुत परंपरा नहीं है। दूसरों को बदनाम दे के अपना पीठ बचाने का कोशिश है। और ये आम्बेडकर होम मिनिस्टर जिस तरह को पार्लियामेंट हाउस के अंदर उसको अपमान सूचक बात किया है, इसके बाद उसको तो कोई शोभा ही नहीं देता इस सवाल उठाने के लिए। माफ़ी मांगना है, उसको माफ़ी मांगना है, दूसरों को नहीं। सांसदों पर हमले को भी देखा है, क्या इस आचरण को संवैधानिक माना जाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी के आचरण को संवैधानिक माना जाना चाहिए? सर, क्या कहेंगे? अरे, जब पिछले से साल में जब हमारा राज्यसभा में हमारा लेफ्ट एमपीज को मारपीट किया था बीजेपी का हाउस का गुंडागर्दी करके, इसका इतिहास कम नहीं है। और वो जो घटना घटी है अभी साबित नहीं हुआ। पार्लियामेंट के अंदर सही सलूक करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ सच्चाई कितना है उसको एग्जाम है, तहकीकत करने दो उसको। फुटेज देख के कौन किया, कौन अपराध किया, इसको होगा ना दो। अपराध किया होगा तो उसको जरूर निंदा करेगा लोग। जी,
ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कहा है कि कह रही है कि अपमान करना कांग्रेस का स्वभाव है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सर, दिस इज रिडिकुलस। ये हास्यास्पद है, क्योंकि अंबेडकर से शुरू से आज तक पूरा जो अपमान किया वो आरएसएस और बीजेपी, क्योंकि बीजेपी दिल से अंबेडकर के नहीं, वो मनुस्मृति को अपना संहिता मानता है। संविधान उसका बस करेगा तो अंबेडकर का संविधान हटा के मनुस्मृति लाने का उसका वो ऐलान किया, बार बार ऐलान किया है। तो इसलिए अंबेडकर का इज्जत करने का उसका बहुत परंपरा नहीं है। दूसरों को बदनाम दे के अपना पीठ बचाने का कोशिश है। और ये अंबेडकर होम मिनिस्टर जिस तरह को पार्लियामेंट हाउस के अंदर उसको अपमानसूचक बात किया है, इसके बाद उसको तो कोई शोभा ही नहीं देता इस सवाल उठाने के लिए। माफ़ी मांगना है उसको, माफ़ी मांगना है, दूसरों को नहीं। सांसदों पर हमले को भी देखा है, क्या इस आचरण को संवैधानिक माना जाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी के आचरण को संवैधानिक माना जाना चाहिए? सर, क्या कहेंगे? अरे, जब पिछले से साल में जब हमारा राज्यसभा में हमारा लेफ्ट एमपीज को मारपीट किया था बीजेपी का हाउस का गुंडागर्दी करके, इसका इतिहास कम नहीं है। और वो जो घटना घटी है अभी साबित नहीं हुआ। पार्लियामेंट के अंदर सही सलूक करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ सच्चाई कितना है उसको एग्जाम है, तहकीकत करने दो उसको। फुटेज देख के कौन किया, कौन अपराध किया, इसको होगा ना दो। अपराध किया होगा तो उसको जरूर निंदा करेगा लोग। जी, ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। Samajwadi Party leader Ravidas Mehrotra criticized Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath's recent statement, accusing the BJP government of constantly insulting Dr. B.R. Ambedkar and undermining his legacy. Mehrotra emphasized that the Samajwadi Party has always upheld the principles of Ambedkar, advocating for justice and rights for the Dalit and backward communities. He condemned the BJP's disrespect for Ambedkar, calling for accountability and an apology from BJP leaders for their actions against the constitutional act. Gone. विद्यालय बनाया, बल्कि जो उनके नाम पे जो विश्वविद्यालय थे या अन्य स्थल थे उसके नाम बदल दिए गए। समाजवादी पार्टी हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करती रही है और लगातार जो उनके सिद्धांत हैं, जो उनकी नीतियां हैं, जो उनके कार्यक्रम थे, उन पर चलने का हमेशा काम किया है। सापा ने हमेशा समाज के वंचित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका हक, अधिकार, न्याय, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार मिले, इसके लिए संघर्ष करने का काम किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत पहले ही आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा डॉक्टर बाबा साहब के खिलाफ रही है और लोकसभा के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के गृह मंत्री ने अंबेडकर जी का बार बार जिस तरीके से नाम लिया है और उनका अपमान करने का काम किया है, उसके लिए पूरा देश कभी भी भाजपा को माफ नहीं कर सकता है। बाबा साहब को जो करते हैं प्यार, वो भाजपा से करते हैं इनकार। विधायक जी, मुख्यमंत्री साहब ने करवाया न ही कोई विश्वविद्यालय बनाया, बल्कि जो उनके नाम पे जो विश्वविद्यालय थे या अन्य स्थल थे उसके नाम बदल दिए गए। समाजवादी पार्टी हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करती रही है और लगातार जो उनके सिद्धांत हैं, जो उनकी नीतियां हैं, जो उनके कार्यक्रम थे, उन पर चलने का हमेशा काम किया है। सापा ने हमेशा समाज के वंचित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका हक, अधिकार, न्याय, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा
और रोजगार मिले, इसके लिए संघर्ष करने का काम किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत पहले ही आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा डॉक्टर बाबा साहब के खिलाफ रही है और लोकसभा के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के गृह मंत्री ने अंबेडकर जी का बार बार जिस तरीके से नाम लिया है और उनका अपमान करने का काम किया है, उसके लिए पूरा देश कभी भी भाजपा को माफ नहीं कर सकता है। बाबा साहब को जो करते हैं प्यार, वो भाजपा से करते हैं इनकार। विधायक जी, मुख्यमंत्री ने करवाया न ही कोई विश्वविद्यालय बनाया, बल्कि जो उनके नाम पे तो विश्वविद्यालय थे। BJP leader Praveen Khandelwal criticized oppositional convener Arvind Kejriwal for his recent statement, accusing him of making baseless allegations and attempting to deflect attention from his own party issues. Khandelwal argued that Kejriwal's claims were a diversionary tactic, aiming to mislead the public and divert focus from his administration's shortcomings in Delhi. He emphasized that Kejriwal's leadership had failed to deliver on key promises and was facing growing criticism. अरविंद केजरीवाल का ये बयान सीधे तौर पर दिल्ली के मतदाताओं का अपमान है। उनके कहने का मतलब है कि दिल्ली का मतदाता पैसे से खरीदा जाता है। इससे ओछी बात कोई नेता कर नहीं सकता और उन्होंने यह आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव हार रहे हैं, तो इस प्रकार का लांछन वो दिल्ली के मतदाताओं पर लगा रहे हैं कि दिल्ली के मतदाता को कोई पैसे देकर के खरीद सकता है। मुझे बहुत सख्त एतराज है और अरविंद केजरीवाल को अपने इस गैर जिम्मेदाराना बयान के लिए दिल्ली के मतदाताओं से माफी मांगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने लोकतंत्र का मखौल उड़ाया है। वो ये बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि लोकतंत्र में पैसे के बल पर कोई भी चुनाव जीत सकता है और इस प्रकार का बयान अरविंद केजरीवाल से ही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि हमारी राजनीति के, भारतीय राजनीति के सबसे गैर जिम्मेदार नेता हैं अरविंद केजरीवाल। और मैंने तो बार बार कहा है, वो केजरीवाल नहीं, वो गजनी है। पूरी हिस्ट्री रही है दलित और पिछड़ी जाति से आने वाले लोगों के साथ और उनकी इंसल्ट करना। कांग्रेस का डीएनए इस बात को साफ दिखाता है कि कांग्रेस ने सदा इस देश में दलितों का विरोध किया है। बाबा साहब आम्बेडकर का जितना अपमान कांग्रेस ने किया, उतना देश में किसी ने नहीं किया। बाबा साहब को चुनाव हराने वाले ये लोग थे। बाबा साहब को भारत रत्न कांग्रेस ने नहीं दिया और कांग्रेस ने आजादी से लेकर के अब तक केवल देश में वोटों की राजनीति की है। उन्हें देश से या देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है और इसीलिए वो बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान करने पर तुले हुए हैं। अरविंद केजरीवाल का ये बयान सीधे तौर पर दिल्ली के मतदाताओं का अपमान है। उनके कहने का मतलब है कि दिल्ली का मतदाता पैसे से खरीदा जाता है। इससे ओछी Saurav Bharadwaj, Delhi Minister, defended Mahila Samman and Sanjeevani schemes, emphasizing their importance in empowering women and providing critical support. Bharadwaj praised Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal for initiating these programs, which aim to improve women's safety, healthcare and overall well-being in the city. He dismissed opposition criticism, highlighting that these schemes were created with the intention of genuine welfare and support for marginalized sections of society. Bharadwaj reiterated Kejriwal's commitment to improving the quality of life for all Delhi cities, particularly women. कई वर्षों से दिल्ली के गांवों की जो पुरानी सभ्यता है और जिस तरीके से उसके अंदर विकास आ रहा है, उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं शाहपुर जेट फेस्टिवल में। हर वर्ष ये फेस्टिवल होता है जिसके अंदर हमारे जो गांव की संस्कृति है, हमारे जो पुराने संगीत होते हुआ करते थे, रागनी हो गई, सांग हो गया, कठपुतली डांस हो गया,
नगाड़ा हो गया, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और ख़ास तौर पे नया ज़माने का जो फैशन शो है वो होता है। एक फैशन शो होता है जिसमें हमारे गांव के बुज़ुर्ग भी हिस्सा लेते हैं। एक प्रोफेशनल फैशन शो भी होता है और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले कलाकारों को भी हम वहाँ पे मौका देते हैं। आज भी था और कल भी वो शो रहेगा। सर, आज अरविंद केजरीवाल जी ने कई जगह दौरा मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे विनय सक्सेना जी बैठे हैं, मगर जिस तरीके से रोज राजनीतिक बयान वो देते हैं, राजनीतिक चिट्ठियां वो लिखते हैं, वे इस पद की गरिमा को खराब कर रहे हैं। और दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को चुना है और उनसे, उनके कामों से खुश होके, उनसे प्यार करने वाले लोग उनको दोबारा चुनेंगे। कि कई वर्षों से दिल्ली के गांवों की जो पुरानी सभ्यता है और जिस तरीके से उसके अंदर विकास आ रहा है, उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं शाहपुर जट फेस्टिवल में। हर वर्ष ये फेस्टिवल होता है जिसके अंदर हमारे जो गांव की संस्कृति है, हमारे जो पुराने संगीत होते हुआ करते थे, रागनी हो गई, सांग हो गया, कठपुतली डांस हो गया, नगाड़ा हो गया, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और ख़ास तौर पे नया ज़माने का जो फैशन शो है वो होता है। एक फैशन शो होता है जिसमें हमारे गांव के बुज़ुर्ग भी हिस्सा लेते हैं। एक प्रोफेशनल फैशन शो भी होता है और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले कलाकारों को भी हम वहाँ पे मौका देते हैं। आज भी था और कल भी वो शो रहेगा। सर, आज अरविंद केजरीवाल जी ने कई जगह दौरा मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे विनय सक्सेना जी बैठे हैं, मगर जिस तरीके से रोज राजनीतिक बयान वो देते हैं, राजनीतिक चिट्ठियां वो लिखते हैं, वे इस पद की गरिमा को खराब कर रहे हैं। और दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को चुना है और उनसे, उनके कामों से खुश होके, उनसे प्यार करने वाले लोग उनको दोबारा चुनेंगे। कि कई वर्षों से दिल्ली के गांवों की जो पुरानी सभ्यता है और जिस तरीके से उसके अंदर विकास आ रहा है, उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं शाहपुर जट फेस्टिवल में। हर वर्ष ये फेस्टिवल होता है जिसके अंदर हमारे जो गांव की संस्कृति है, हमारे जो पुराने संगीत होते हुआ करते थे, रागनी हो गई, सांग हो गया, कठपुतली। Udit Raj, Congress leader, responded to Bhai Jagdap, a recent statement emphasizing the importance of unity within the party. Raj urged party members to focus on strengthening the organization and addressing key issues affecting the public. Rather than engaging in internal disputes, he reiterated that Congress must stay united to effectively challenge the ruling government and work for the welfare of the people. Raj's comments reflect the ongoing efforts within the party to maintain cohesion and prepare for future elections. ये उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, उनके ऊपर पैसा दोनों के पास अथाह है। इतना महंगा आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, वो बीजेपी ही मुकाबला कर सकती थी। इतना पैसा कहाँ से आता है? लगभग 140 वर्ष की पुरानी पार्टी कांग्रेस, इसके कार्यालय नहीं है। और जिस तरह से इन्हें इतना सोशल मीडिया पर खर्च किया जाता है ना, पब्लिसिटी, आप देखिए आम आदमी पार्टी कितनी होर्डिंग लगी है, बीजेपी से ज़्यादा होर्डिंग लगी है। कहाँ से पैसा आता है? तो ये कोई नैतिकता की, ये कोई नैतिकवान नहीं है। यह भी कह देना कि ये ईमानदारी से है, तो क्या ईमानदारी है? जिस तरह से जो ये कहते हैं वो खुद भी करते हैं। और इनका जब रोड शो होता तो करोड़ रुपया लगता है, उसमें कहाँ से पैसा आता है? तो एक दूसरे के ऊपर दोषारोप लगाते हैं। और दिल्ली को बनाया तो कांग्रेस ने, कांग्रेस को जनता लौटाए, वही विकल्प है दिल्ली का, और कोई तरीका नहीं। वो सर खाई में गिर गया है जिससे कई जवानों की शहादत होने की खबर आ रही है। इस घटना को लेकर बड़ी दुखद बात है। मैं बड़ी संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं उनको Bhanu Pratap Singh, Assistant Superintendent of Police,
Danapur confirmed that the body of Ranjit Yadav alias Dahi Gop, former Vice President of the Danapur Cantonment Board, has been brought back to Danapur. Yadav's body was received after it was discovered under mysterious circumstances. Singh assured that the police are thoroughly investigating the matter to determine the cause of death and any potential foul play involved. The authorities have vowed to take appropriate action based on the investigation's findings. एक जगह है पेटिया बाजार, वहाँ पर एक गोलीबारी की घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति गोरख राय की उसमें मृत्यु हो गई थी। साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति जिनका नाम रंजीत राय उर्फ दही गोप था, उनकी भी मृत्यु हो गई है और इसमें पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है उसी दिन से और हम जल्दी इसका उद्भेदन करेंगे और हमलावरों की गिरफ्तारी की जाएगी। सर क्या लग रहा है मामला प्रथम दृष्टया क्या? देखिए, प्रथम दृष्टया अभी तो कयास लगाना ठीक नहीं होता। पुलिस क्या एविडेंस पर आधारित बात करती है, तो अभी क्योंकि इनिशियल स्टेज में ये केस है तो इस पर कुछ भी अपने आप में कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे देना अपने आप में मेच्योर है। अभी हम लग रहे हैं, अभी इसको हम कई दृष्टिकोण से संभाल रहे हैं। जल्दी हम इसका उद्भेदन कर लेंगे और जो भी हमलावर है उनको अरेस्ट कर लेंगे। सभी चीज़ों को संभाल रहे हैं। लोगों में चर्चाएं चल रही है कि गैंगवार भी हुआ है। नहीं, जैसा मैंने बताया ना कि गैंग वार वाला जो इशू है उसको भी हम संभाल रहे हैं। अगर कोई भूमि विवाद है तो उसको भी हम संभालेंगे, या कोई प्रेम का एंगल है उसको भी हम संभालेंगे, या कोई और वजह है उसको भी संभालेंगे, या किसी बाहरी व्यक्ति ने इसमें करवाया उसको भी हम संभालेंगे। तो बिल्कुल सारे जो बिंदु होते हैं एक एसओपी में मर्डर के लिए जिसका सामान्यतः पुलिस अनुपालन करती है, तो सबको हम देखेंगे। Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath celebrated the 100th birth anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, remembering him as a visionary leader who shaped India's progress and left a lasting legacy. Speaking at the event, Yogi Adityanath highlighted Vajpayee's contributions to the nation, particularly his leadership in economic reforms, national security, and diplomacy. The CM emphasized that Vajpayee's values of integrity, patriotism, and inclusive development continue to inspire the people of India. The celebration was marked by various events, including the unveiling of statues and tributes across the Uttar Pradesh. भारत माता के महान सपूत देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह जन्म शताब्दी वर्ष और इस अवसर पर आज से प्रदेश भर में सुशासन सप्ताह का शुभारंभ हो रहा है। हम सब जानते हैं श्रद्धेय अटल जी के पैतृक जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है। उन्होंने अपने कर्म भूमि के रूप में भी उत्तर प्रदेश को चुना। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर और लखनऊ से कई बार उन्होंने देश की संसद में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। देश के विदेश मंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने देश को एक सक्षम नेतृत्व प्रदान किया। In a strong response to the dismissed no confidence motion against him, Vice President of India and Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar likened the opposition's attempt to perform complex bypass surgery with a simple vegetable knife. He stated that the opposition's efforts were ill-equipped and destined to fail, emphasizing that their motion lacked the necessary merit and was an attempt to undermine the functioning of the Rajya Sabha. Dhankar's remarks highlighted his beliefs in the procedural integrity of the House and his confidence in the continuing his role as chairman. The Prime Minister who has created history, being second one since independence, to be continually in his third term. And in third term at a time when politics is very challenging, highly representative, a rare honor. Some are still not reconciled to this. You take on our constitutional institutions
I don't hold brief for myself. But look at the notice against Vice President. Just have a look at it. Just look at the 6 links they have given. You will be shocked. Chandrasekhar. That's the wrap up of the Inside News. Keep watching CVR English.